कई साल बाद स्टेज पे लौट रहा हूँ तो परफॉर्मेंस का चुल तो है ही, पर अभी नर्वसनेस भी है. Hi everyone, my name is Apurv, and I learned you are interested in knowing how to love me. I mean, I feel honored to be worthy of your love, truly. Because love is a language that has a vocabulary with every person. So I have put together an instruction manual that has some guidelines of its own. that you can अबे ओए क्या बकवास कर रहा है? ऐसे भी कभी कोई प्यार करता है क्या? किताबी ज्ञान जैसा, गणित के किसी सिद्धांत जैसा. प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है और फिर उसे निभाते हैं शिद्दत से, जुर्रत से, बेखौफ, बेइंतहा. Excuse me, why are you interrupting me? I'm sorry, please ignore him. He has no idea clearly. No, seriously, what he's saying is genuinely asinine. It's not fine. We're not in 1999 running through flower fields proposing with one leg kneeled. We have healed beyond these dated ideas. Staying in a relationship that doesn't really work while we get to shirk any responsibility that comes with loving someone. Knowing someone's tics and quirks is crucial. Okay, as an example, when it comes to me, all you gotta do is communicate freely. Say exactly what you mean with nothing to glean between the lines. No hidden context. And I love to talk about films. I would tell you so much about Park Chan-wook and Kurosawa. We would go out on a date and watch a film from Iran. पर उस दिन तो तू देख रहा था तीसमार खान. बोल बोल ना, अब की हो गई बोलती बंद. फिरंगी फिल्मों का इतना है इसे घमंड, पर चुप चुप के शाहरुख के फिल्मों में ये रोएगा और उन्हीं सरसों की खेतों में अपना दिल और होश खोएगा. मानेगा नहीं, पर मुझ जैसों की भी ना एक खूबसूरती होती है जो अपने दिल को ही ताबीज़ बनाकर दुनिया से मिलने निकलते हैं. अगर मुझसे प्यार करना हो तो उसका है बस एक उसूल. कोई किताब नहीं, कोई अनुदेश की श्रृंखला नहीं जिसे करना हो मकबूल. ले आओ बस अपनी रूह को बिना ढके, बिल्कुल एक नंगे शिशु की तरह, और आपस का आत्मसमर्पण हो. दे दे हम एक दूसरे को पनाह. Sorry, that last line really made me gag. Do you realize you're making us look like a douchebag? Bro, wake up. We're in 2025. The world has moved ahead and you're still stuck in the past life? This is precisely the problem with regressive mindsets like yours. You want to stay close to your roots and reject anything new. You will call us woke. You'll detest a progressive outlook. You'll go broke before you go out and pick up a book that can unhook your mind from unlearning everything that you've been raised upon. Gone are those times of losing your individuality in love. Love has moved on from monogamy to polyamory. One ring for one true love? That's some scary Tolkien nightmare. The love that succeeds is a love that's fair and mature enough to draw rules and boundaries, than to have unconditional expectations and make it so cruel to even want to express how you want to be loved. Love needs to be clear and practical. And एक मिनट, ये जो कहा ना, ये आखिर के दो शब्द, यही वजह है तुम जैसे को नहीं मिल रहा कोई हमदर्द. समुंदर की अनगिनत मछलियों में उंगलियों के इशारों पे मोहब्बत को खोजने वाले लैला मजनू, शिरीन फराद, हीर रांझा की आशिकी को बेवकूफ़ी कहने की बेवकूफ़ी करेंगे. इस प्रगतिशील विचारधारा से इतना लिपट गए हो कि अब बोली भाषा छोड़ो, सोच विचार भी अंग्रेजी में करते हो. प्यार की परिभाषा ही बदलकर अगर उस मृगजल को खोजने निकले हो तो फिर ठीक है, दे दो, लिख दो अपने अनगिनत दिशा निर्देश और बना लो अपनी नियमावली प्यार की. उसे पकड़ के अकेले करना फिर तुम चौकीदारी अपने भ्रमों से भरे दरबार की. ओए, ऑल ऑफ योर डायलॉग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज द इग्नोरेंस इनटू ट्रूथ. और तेरे कानों से तो सच्चे सुनने की आदत ही चल गई छोड़. ब्रो, डू यू इन रियल्स व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू? अबे तूने कभी अकेलेपन भी रख लो. दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन आई कॉन्फिडेंटली थॉट कि मुझको या किसी भी इंसान को एक हाउ टू लव मी की मैनुअल में फिट किया जा सकता है. यार ऐसे ही बने हम जैसे किसी कॉन्ट्राडिक्शंस का पैकेज. बातें देसी, सोच अंग्रेजी, वन सोलमेट फॉर लाइफ, मेनी सोल्स टू लव. देयर आर टाइम्स वेयर आई एम वन थिंग व्हाइल बीइंग सेवरल ऑफ देम दैट वर्क टुगेदर इन टैंडम टू मेक मी हु आई एम. खुद की विविधताओं की एकता को नज़रअंदाज करके अपने अस्तित्व को ही, अपने वजूद को ही अपना दुश्मन बना के बैठे हैं. बताओ, अगर हर किसी में मैं अपने आप को ही पाऊँ तो कैसे मैं किसी और को मुझसे प्यार करना सिखाऊं. पर अब लगता तो यही है कि एक हाउ टू लव मी की मैनुअल लिखनी तो पड़ेगी, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इट आई विल एंड अप बीइंग इट्स फर्स्ट रीडर ऑलरेडी. और फिर शायद इस चक्रव्यूह से मैं थोड़ी राहत पाऊं और सबसे पहले मैं अपने आप से प्यार करना सीख जाऊं. थैंक यू. क्या बात है सर.